السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد ساقی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساقی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ضلع فیصل آباد کی تحصیل چراغاں ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر افتخار رشید صاحب کے پاس۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کیا ہے، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور طب کے طریقہ علاج میں کیا فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہومیوپیتھی کا ڈپلوما کیا یا اس کی مطلب کمپلیٹ ایجوکیشن آپ کے پاس موجود ہے؟ جی کمپلیٹ موجود ہے، اور ہم نے الحمدللہ یہ 2-3 اداروں سے ہم سرٹیفائڈ ہیں۔ یہ کہ ہم اسلام آباد ہومیوپیتھک فارمیسی ہومیوپیتھک رجسٹریشن آپ کے پاس؟ رجسٹریشن بھی ہے، اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک اس سے ہم رجسٹرڈ ہیں، اور ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب سے بھی ہم جو ہے نا وہ لائسنس یافتہ ہیں، اور ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ اس کے لائسنس وغیرہ اور ہماری ڈپلومے کی کاپی لگی ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے پاس کس قسم کے مریض جو ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ تقریباً کن کن بیماریوں کے جو ہے آپ کے پاس مریض آئے اور آپ کے پاس سے اللہ کی طرف سے اللہ ان کو شفا ملی؟ الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں جو مریض ہیں وہ میدے کے امراض کے مریض ہیں، جو بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قد چھوٹا جو آج کل بہت سارے بچیوں میں اتنا ہو رہا ہے، اس کے متعلق بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اور اب جو نئی لہر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے گلے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ٹانسلز کا مسئلہ آ رہا ہے، ٹانسلز کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے قد بہت زیادہ چھوٹے رہ رہے ہیں، بچوں کی خوراک کی کمی کی وجہ اس سے۔ کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ قد کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو خوراک مناسب نہیں ملی، یہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، یہ کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو پراپر طریقے سے جو ہماری نیچرل خوراک تھی اس سے دور کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو میجر پرابلمز ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں، یا کان ہے، یہ بی پی بلڈ جو پریشر کا مسئلہ ہے، یا شوگر کا مسئلہ ہے، اس کی آپ کے پاس میڈیسن ہے؟ جی اس کی بھی میڈیسن ہے، ہیپیٹائٹس وغیرہ کی بہت بہترین علاج ہے، اور شوگر جو ہے زیادہ تر آج کل جو ہو رہی ہے وہ ٹینشنوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور معاشی مسائل ہیں لوگوں کے بہت زیادہ، لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ٹینشن کی وجہ سے، گھریلو پرابلم کی وجہ سے لوگ جو ہے شوگر کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آج کل جو بڑی بڑی بیماریاں بچوں میں بڑوں میں بھی آ رہی ہیں، وہ کینسر کی بہت بڑی بیماریاں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اس کا بھی الحمدللہ ہومیوپیتھک میں بہت بہترین علاج ہے۔ اچھا، آپ پیشنٹ کی بیماری کا علاج میڈیسن سے زیادہ کرتے ہیں، یا اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کو حوصلہ دیتے ہیں، ٹینشن ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ مریض جو ہے وہ ٹینشن کا شکار تو نہیں ہے، اگر ٹینشن کا شکار ہے تو اس کی تھوڑی سی اپنا مائنڈ سروس کر دیتے ہیں، اور اگر مریض جو ہے وہ کسی اپنا خوراک کی کمی کی وجہ سے، یا خوراک کے رد و بدل کی وجہ سے، یا مختلف ادویات کھا کر بیماری جو ہے نا اس کو آئی ہے، تو وہ ادویات کا توڑ کر کے اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خوراک مینج کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے تھوڑی سی اپنا ذہنی طور پہ اس کو جو ہے وہ تشفی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ سب جو ایلوپیتھی دوائیاں ہیں وہ فوری آرام کے لیے ہے، انجیکشن ہے، کیپسول ہے، آپ کے پاس جو میڈیسن ہے یہ فوری آرام دہ ہے یا یہ وقت لیتی ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں فوری بھی ہیں، ایون کہ یہاں پہ اگر کسی کو پیٹ درد ہو رہی ہو، یا اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہو، یا ایون کہ اس کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہو، تو ہماری ہومیوپیتھک ادویات میں اس قسم کی ہیں تو فوری طور پہ اس کو اٹیک سے بچا لیتی ہیں، اس کے پین جو ہے وہ معدے کی ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اب جدید طریقے سے یا جدید تکنیک سے ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ ایسی ادویات آ چکی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایلوپیتھی کے بالکل برابر جا رہے ہیں، اور اب پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ دوسرا طریقہ علاج بن چکا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر یا برِ صغیر میں ایلوپیتھی کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، ہومیوپیتھی کی طرف رجحان کم کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اس پہ ہاتھ نہیں ہے، گورنمنٹ ہم کو جو ہے وہ بالکل بینیفٹ نہیں دیتی، جس طرح ایلوپیتھی کے
हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते हैं, उनको जो है फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। अगर इसी तरीके से हमें भी फैसिलिटी दी जाए या हमें फैसिलिटेट किया जाए तो वो होम्योपैथिक भी बिल्कुल एलोपैथी के बराबर जो है वो काम करने के लिए तैयार है। अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में या होम्योपैथी के बारे में या ये मेडिकल फील्ड के बारे में हमें फैसिलिटेट नहीं करेगी तो जाहिर बात है कि जिसको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी वो ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर हमें फैसिलिटी दी जाए तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम ऐसे ऐसे तरीका इलाज जो है वो हमारे ये होम्योपैथिक ऐसा तरीका इलाज है जिससे बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां जो एलोपैथी की वो नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर पागलपन है, एलोपैथी का इलाज नहीं है। टेंशन जो है सिवाय उसके अपना ज़हनी सुकून की अद्विया देने के उसका इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में उसका बहुत बेहतरीन इलाज है। बहुत सारे पागलों का होम्योपैथिक ने इलाज किया है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है होम्योपैथी एलोपैथी के बारे में ये ख्याल रखते हैं, बल्कि डॉक्टर भी कहते हैं कि जो मेडिसिन लोगे एक बीमारी से अल्लाह शिफा देगा तो उसकी वजह से कोई और बीमारी भी जिस्म में शुरू हो जाएगी। एलोपैथी का ये बहुत बड़ा मसला है। क्या होम्योपैथी जो है इसकी भी यही सूरत हाल है? नहीं, इसकी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। एलोपैथी में ये चीज़ है कि अगर आप एक साल्ट्स वगैरह से इलाज कर रहे हैं तो वो दूसरे अज़ाब को जो है डैमेज करना शुरू कर देता है, लेकिन होम्योपैथिक में ये चीज़ है कि जो चीज़ आप बीमारी आपके अंदर मौजूद है उसको ना सिर्फ ख़त्म करती है बल्कि आपकी सारी की सारी बॉडी को महफूज भी कर देती है और दीगर कोई बीमारी भी जिस्म में वो बढ़ना नहीं शुरू होती। एलोपैथी अद्वियात जो है ये पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल है, बाहर से मंगवाई जाती हैं। होम्योपैथी अद्वियात आप पाकिस्तान से लेते हैं या जर्मनी से मंगवाते हैं? हम बहुत सारी हमारा तकरीबन तो 60-70% जो अद्वियात जो है खासकर हम जो हैं वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी से मंगवाते हैं और जर्मन मेड जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों की लेवल के बराबर हैं, उनके भी अद्वियात बहुत ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में तैयार होती हैं। लेकिन ये है कि हम शुरू से ही इम्पोर्टेड वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस इम्पोर्टेड अद्वियात की है। हमारे लोकल भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिनका मेयार जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है। एलोपैथी में डॉक्टर साहब को जब पेशेंट चेक करवाता है तो वो पर्ची लिख के उसको दे देता है कि ये मेडिकल स्टोर से अद्वियात ले लें, मगर होम्योपैथी के जितने भी डॉक्टर मैंने देखे हैं सबके पास रजिस्टर मौजूद होता है। वो सारे का सारा नुस्खा अपने पास लिख कर भी महफूज कर लेता है और पेशेंट को भी देता है। इसकी कौन सी वजह है? एलोपैथी तरीके इलाज की वजह ये है कि वहाँ पे एक ही दवाई अगर दी जाती है तो वो सारा साल वही चलती है, उनमें थोड़ा बहुत रद्दबदल हो जाता है। हमारा ये है कि मरीज़ अगर एक ठीक हो गया, दूसरी अगर अलामत उसमें बढ़ रही है, पनप रही है, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए दवाई चेंज करना पड़ती है। हमें मुस्तकिल तौर पर मरीज़ को दवाई वही साल इस्तेमाल नहीं करवाते। जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो हम उसको महफूज करने के लिए अद्वियात चेंज करते रहते हैं ताकि उसकी सारी की सारी बीमारी जो है वो ख़त्म हो सके। ये है दोनों में फ़र्क, होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में। एलोपैथी जो है जब बंदा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है तो फौरन जो डॉक्टर साहब होते हैं उसको इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं या कोई ड्रिप लगा देते हैं। आपके पास भी कोई इंजेक्शन और ड्रिप का सिस्टम है? हमारे पास ड्रॉप्स इस किस्म के होते हैं कि हम अगर डायरेक्ट जुबान पे डालें तो फौरी तौर पर उस पर असर होना शुरू हो जाता है और मरीज़ जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये मरीज़ जो है वो काफ़ी पुराना है या ऐसी बीमारी उसने जकड़ ली है जो ठीक नहीं हो सकता, तो जाहिर बात है कि उसको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों मेडिसिन एट अ टाइम इस्तेमाल की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती हैं? ये है कि बाज़ कई ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनको स्टेंट वगैरह डला होता है, उनके लिए एलोपैथिक अद्वियात खाना ज़रूरी होती हैं, या शुगर के ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी और बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, उनको भी एलोपैथी खाना ज़रूरी होती है। अगर तो उनके साथ साथ अगर होम्योपैथिक भी इस्तेमाल की जाएँ तो ये है कि बीमारी और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो वार्द नहीं होंगी बल्कि जिस्म को नुकसान भी नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसे बंदे आते हैं कि जिनको स्टेंट डला हुआ होता है, तो वो एलोपैथी की अद्वियात खा रहे होते हैं, जिस्म कमज़ोर हो रहा होता है। हम साथ होम्योपैथी की ये अद्वियात शामिल करके दे देते हैं कि ताकि वो इस्तेमाल करने से उनका जिस्म जो है वो कमज़ोर नहीं होगा और दूसरी बीमारियां दीगर बीमारियों का भी शिकार नहीं होगा, वो आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाए। एलोपैथी जो इलाज है बहुत महंगा है,
بعض बीमारियां तो ऐसी हैं लाखों में है, अल्लाह ना करे कहीं ऑपरेट का वक्त आ जाए तो वो ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए डिमांड होती है। क्या होम्योपैथी में भी इसी तरह की डिमांड है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पर हमारी फील्ड में ज़रा मुख्तलिफ है ये चीज़ें। वो देखना पड़ता है कि ऑपरेशन सीरियस वगैरह तो नहीं है। अगर ज़्यादा सीरियस है तो ज़ाहिर है उसका हल ऑपरेट ही है। लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो मिसाल के तौर पर अगर किसी के जो ना वो पित्ते में पथरी है तो वो उसका होम्योपैथिक इलाज करवा के वो पथरी जो है उसको मेल्ट करवा सकता है। या अगर फर्ज करें उसके जिगर में जो ना एब्सिस वगैरह बन गए हैं तो होम्योपैथिक से उसका इलाज हो सकता है। या उसके जिगर में कैंसर हो गया तो होम्योपैथिक इसका इलाज करती है। या उसकी अंतड़ियों को मसला है, सिवाय ऑपरेट के उसका मसला के अंतड़ियों में गांठ वगैरह बन जाती है तो होम्योपैथिक बगैर ऑपरेट के उसका हल निकालती है। और इसी तरह अगर डॉक्टर साहब एलोपैथी जो है उसमें तो पित्ता निकालना पड़ता है, वो ऑपरेट करके डॉक्टर साहब पित्ता ही निकाल देते हैं, वो कहते हैं कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। मगर होम्योपैथी में आप कहते हैं कि पित्ता निकाले बगैर भी इसका इलाज है। वो ये है कि हर चीज़ का इलाज वो चीज़ को निकालना नहीं होता। ठीक है, उनकी अपनी जो ना वो यही बात है। लेकिन होम्योपैथिक में ये सिस्टम है कि अगर आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल लगातार करें तो आपके सारे प्रॉब्लम भी हल हो सकते हैं। और ये पित्ते की पथरी ही नहीं है बल्कि आप बहुत ज़्यादा और जिस्म में गिल्टियाँ जो बगैर ऑपरेट के जो ना वो नहीं निकलती। डॉक्टर साहब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है क्या ये एक ही दफा और लाइफ है या इसको आप अपडेट करवाना पड़ता है? हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो होम्योपैथिक फार काउंसिल से हर 4 साल बाद जो है रिन्यू करवाई जाती है। 4 साल का पीरियड होता है? हर 4 साल बाद रिन्यू करवाई जाती है। और हमारी जो लाइसेंस जो है ना हर 4 साल बाद रिन्यू जो है वो हेल्थ केयर कमीशन जो है ना उससे दोबारा हमें बनवाना पड़ता है। सही है। अच्छा, एलोपैथी में ऑपरेशन और ऑपरेट आखिरी इलाज है, यानी जब किसी भी सूरत में पेशेंट को कोई मतलब फायदा ना हो रहा हो तो ऑपरेशन उसका कर दिया जाता है। क्या होम्योपैथी में ऑपरेशन का तरीकाकार है या ऑपरेशन के बगैर ही सारा इलाज है? ऑपरेशन से हम इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई ऐसा मर्ज है जो सिवाय ऑपरेशन के उसका हल नहीं है तो उसको ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स रात गलत बयानी करते हैं कि हर चीज़ का इलाज होम्योपैथिक में ही है। जो चीज़ अगर ऑपरेट होने वाली है उसका हल कहीं और से नहीं निकलता तो उसको ऑपरेशन करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह अज़ीज़ बहुत सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे बीमारों को अल्लाह ताला आपके जरिए से शिफा दे रहे हैं। क्या इलाज करवाना दीन इस्लाम के मुखालफत में नहीं है, मुखालफ तो नहीं है? इलाज करवाने के बारे में कुरान पाक में या अहादीस मुबारक में कोई चीज़ वारद है? जी, इसका कुरान पाक में भी अल्लाह का हुक्म है कि वही अल्लाह है जो आपको शिफा देता है। ठीक है ना, शिफा तो बिन जानिब अल्लाह होती है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इलाज करवाने की तरगीब दी है। इलाज कोई सा भी आप करवाएं जो आपको सूट करता है। आप होम्योपैथिक करवाएं, आप तिब का करवाएं, आप एलोपैथी करवाएं, इलाज करवाना सुन्नत है। जो ये लोग कहते हैं कि नहीं इलाज नहीं करवाना चाहिए, यहाँ इलाज करवाने के लिए सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें आती हैं वो बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, बाद में और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये इलाज करवाना ये सुन्नत भी है और ये अल्लाह का फरमान भी है और इसको जो ना अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। और कोई भी दवाई बगैर किसी डॉक्टर के, सर्टिफाइड डॉक्टर जो है उनके मशवरे से कभी भी इस्तेमाल ना की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है, एलोपैथी, होम्योपैथी और तिब तीनों में फर्क क्या है? ये एलोपैथी के वो मुख्तलिफ सार्ट्स वगैरह हैं उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और तिब जो है मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इलाज मिलती है ना, हमारा इलाज इन दोनों से मुख्तलिफ है। हमारा इलाज इस तरह का है कि जो बीमारी आपके अंदर दाखिल हुई है, जो आपको जिस वजह से आपको बीमारी हुई, मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर ऐसी जहरें पैदा हो गई हैं तो हम जहरों ही के जरिए उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे चैनल के जरिए से आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अवाम नास को और तमाम पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने नेचुरल चीज़ें जो हैं, अपने घर की बनाई हुई चीज़ें जो हैं, वो देसी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करें। और बाहर की चीज़ें जो फास्ट फूड वगैरह है इसको बहुत कम
حد تک استعمال کریں اور اپنے بچوں کو گھر کی بنی ہوئی چیزوں کو زیادہ استعمال کرائیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہومیوپیتھک ادویات کی طرف زیادہ جو ہے رجوع کریں، تو اس سے آپ کا خاندان اور آپ کے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں۔